आ जा। तू याद रखी अपने गुरु ते प्रभु नू जेड़ा तीने ताप निवारण हारा है। दुख हंता सुख रास है। ते तेनू दस देवां, जे तू अपने होर आसरे परने कोशिशां छड्ड के सिर्फ उहदे लड़ लग जावें तां तेरी जिंदगी अंदर कोई ताप आ ही नहीं सकता, कोई रुकावट पै ही नहीं सकती। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन ना को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, जाकी प्रभ आगे अरदास, जाकी जाकी प्रभ आगे अरदास, जाकी प्रभ आगे अरदास, जाकी। वाह वाह। ये है एक दुआई, ये है एक ढंग। प्रभ आगे अरदास ते अरदास विच मंगना कुछ नहीं। मैं मुआफी चाहना यह कहन दी कि साडे सिखां ने अरदास का मतलब मंगा मंगनियां ही शुरू कर लिया। नहीं, अरदास हुंदा अपने कोलों दे देना, कुछ दे देना ते उन्हें कहना मालका मेहर करी। बस बाबा नानक सिंह जी कहा करते हैं भुल्लां माफ़ करियो, मेहर करियो। बस इन्नी क अरदास कि बाकी उसनों सब कुछ पता नहीं, अंतर्जामी नहीं है, साडे दिलों दियां नहीं जानता। मेहर करियो, भुल्लां माफ़ करियो, अरदास हो गई। जदों इस तरह का जीवन जी लवांगे ना तो फिर साडी ख्वाहिशां तो मौत हो जाएगी। हुक्म रजाई चलन की जुगत मिल जाएगी कि वह जो करता है मेरे भले वास्ते करता है। केतियां दुख भूख सद मार ए भे दात तेरी दातार, इसकी सोझी आ जाएगी। गुरदेव जी का अज का बचन बिलावल महला पंजवा। बिलावल ठाठ है, कीर्तनियां दे गाउण वास्ते भी बिलावल राग है, रागियां दे गाउण वास्ते भी बिलावल राग है, तो इसका समा भी आही चल रहा है, सवेरे वेले का राग है। पर गुरु जी कहते गुरसिखो जे तुसी बिलावल गाना होवे ना तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होर ठुमरियां पा के ना गायो, होर गज़लां पा के ना गायो, होर दुनियावी शरीरक कच्चे इश्क मुश्क दियां गल्लां ना करियो। बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे ना। ये उदों ही होया समझियो जब तुहाडे मूँह विच परम पिता परमात्मा की याद है। सो की होया? बिलावल निरापुरा सवेरे नहीं गाना, जदों तुसी अपने मूँह विच परम पिता परमात्मा की याद नूं लै करके उस संसारी जीवन जी के उहदी याद विच जुड़ के कोई अखर बोल रहे हो ना, उदों तुहाडा बिलावल चल रहा है। उहदे विच बोले हन महला पंजवा, ऐसा टिकाणा जिहड़ा 5वें नंबर से गुरु नानक जी बन के सामने आए हैं। नानक हुणे थोड़ी देर बाद आप जी ने गुरु नानक जी का आगमन पुरब मनाउणा। एक मैं दसां, उहदे पुरब सदा ही मन्ने हुए ने।
ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਤਾਪ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਰਕ, ਇਹ ਤਾਪ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਗਰਮੀ ਹੀ ਗਰਮੀ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ, ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਵੀਂ ਉਹਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਵਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਸਭ ਉਸੀ ਉਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾ ਲਈਐ
नाए लय नरक ना जाय, नाए लय नरक ना जाय, नाए बस ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, बुराई करन दा ध्यान रखना। बुराई करन दा समा भी मिल जावे, साधन भी हो जान, स्थान भी होवे। बुराई करन दा समा भी मिल जावे, साधन भी मिल जावे, स्थान भी मिल जावे, उस वेले मेरा वाहगुरू याद आ जावे, मेरा गुरु याद आ जावे, ये काम सिखा तेरे करन दा नहीं है। उस वेले जदों मैं बुराई तो बच गया, ये प्रभु का नाम लै हो गया। ये तो बिना नहीं कि असी किन्ने घंटे ਉਹਦੇ नाम का रट्टा लाया, उठद्या किसी गरीब का गला कप दिता, किसी की जेब कट दी, किसी की इज्जत रोल के रख दी। की फायदा होया उस वाहगुरू वाहगुरू कहन दा नाम लैन नहीं है। ये तो एक सोझी लैन का ढंग है कि तुहाडी याद विच वस जावे, जब औखी वेला होवे उदों ही याद आ जावे। त्रिमू हैड दे उत्ते डोल दे डके डोले खांदे बाबे मक्खन शाह लुबाणे दे बेड़े नूं सिर्फ इस याद ने ही पार ला दिता सी। ख्याल रखना, औखी वेला आया सानू प्रभु याद आ जावे, ते अत सौखा वेला आया सानू प्रभु याद आ जावे, ते फिर होवे ये काम मैं नहीं करना। कोई मेरे पिता वाहगुरू नूं की कह देगा, कोई गुरु नूं की कहेगा कि गुरु का सिख होके ऐ प्या करना तू। यह है प्रभु की याद में जुड़ना, उसका नाम लेना। बाकी पहली तैयारी ही है सारी। मिसाल दे दूँ, दुनिया की वड्डी गेम चल रही सी, हाकी का मैच चल रहा सी, आखिरी सीटी बजन विच कुछ सेकंड रहिंदे सन। असीं दौड़दियां प्लेयरां ने दौड़दियां बाल नूं नैट दे सामने लै आंदा, गोलकीपर भी एक पासे रह गया। जे उस वेले मैं वो बाल फट्टे विच खड़काया नहीं है ना, गोल नहीं किया, तो मेरे खेडण का कोई अर्थ नहीं हुंदा। मौके सिर समय सिर सच सुनाए ची सच की वेला कर जावां, बुराई तो बच जावां, मैं अपने जीवन में जित जावां। जदों मैनू पता लगे ना कि मैं हुण अपने शरीर के आखिरी श्वास लैन लगा हाँ, कोई मैनू आके पूछे सुना बई तू गुरसिख सी, तू गुरमुख सी, रब दा भगत, लोग तैनू कहंदे सन तेरा जीवन का की हाल है, उस वेले तू कह सके सफल सफल भई सफल यात्रा, तो समझ लेना मैं नाम जपिया है। जे साडे अंदरों बुराइयां नहीं कटियां फिर तो ताप चढ़े हुए हैं। किसी नूं काम का ताप, किसी नूं क्रोध का, किसी नूं लोभ मोह अहंकार का, तो किसी नूं ईर्खा द्वेष का, किसी नूं अपनी ही प्रभुता का ताप चढ़िया होया। तुसीं मेरी गल सुन के हैरान ना होयो, इसे वास्ते ही साडी जिंदगी अंदर बदमज़गियां वध रही हैं कि साडे टेस्ट बिगड़ गए। हुण साडी अवस्था पता की है, अमृत कौरा बिखिया मीठी तो सामने ताप चढ़िया होया, शाकत की वे नैनो डी। गुरदेव जी कहते भी साडे ते तां हो गई किरपा, ताप लथ गया। ये अखरी अर्थ हैं
गुरु ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਅਕਰੇ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰ ਕਾਲੇ ਖਲ ਖੰਡਨ ਮਹਿਮੰਡਨ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ। ਬੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤਾਪ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ, ਜਗਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਪਾਦ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਫੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਵਰਾਣੀ ਦਾ, ਸੱਸ ਦਾ, ਨੂੰਹ ਦਾ, ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਹਿਮੀਆਂ ਭਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਛੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੱਤ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਸ ਪਿਆ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਬਾਲਕ ਰੱਖ ਲੀਨੋ,
प्रभ अमृत नाम महारस दीन्यो। उन्होंने आप ही हाथ रखिया। हुण ये तो ठीक है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह दे शरीर करके राजी होने ते उन्होंने शुकराने भजन लिखिया, पर गुरबाणी जिहड़ी ना, ये मेरी स्नेमर बेनती है घरां विच पाठ करन वालियां नूं भी, प्रेमी जनां नूं भी, कीर्तनियां ते भाई साहबान नूं भी, गुरबाणी नूं कदी भी एक देशी समझ के पाठ ना करियो, एक काली समझ के पाठ ना करियो कि यह इन्ने के समय वास्ते है, इस काम वास्ते ही है। इसे ने तो साढ़े घरां दे बीमारियां पाइयां, साढ़े विचों ही बंदे उठ के तुसीं यह शब्द पढ़ लो जी तुहाडा आ काम रास हो जाए, तुसीं यह शब्द पढ़ लो जी तुहाडा आ काम रास हो। मैं कहना बाकी बाणी बेमायनी है। जे एक शब्द नाल ही गल बननी है ना, वो फिर मिसाल पता की देणगे, कहंदे जी लिखिया होए ना एक शब्द मेरे प्राण वास्ते पे, वो इहो ही शब्द है जिहड़ा तूं जप रहा। उत्थे उस शब्द का अर्थ है परम पिता परमात्मा की हुक्म रजा विच चलन की जुगती, कि मैं अपनी मर्जी का जीवन जीना। दूजे अखर ने कहा मैं मनमुखताई का जीवन नहीं सी जीना, मैं सारी उम्र गुरमुख बन के ही रहना सी। ये शब्द है मेरे प्राणा विच वसिया होया, तेरी बरकत है बाहर जन्म ना आवा, मुड़ के मैं इन्हां संसारी बखेड़ियां विच नहीं पैंदा। सानू ये अर्थ भी जी मुड़ के वो बंदा जम्मेगा नहीं। अच्छा, जे गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी कई बारी जम के इस दुनिया से आ सकते हैं, भाई साहब जी हैरान ना होना, गुस्से भी ना होना। गुरु नानक देव जी सिंह साहब तो हमेशा डर के रहना चाहिए है इन्हों, क्योंकि बहुत वड्डियां बरकतां एवं हर बंदा उठ के ताबिया नहीं बह सकता। इन्हों के मस्तक लिखे ने चंगे भाग ने, इसलिए इन्हों तो डर के रहो, सत्कार करो। इन्हों का सत्कार करांगे, इन्हों के नेड़े रहने वाला मालक फिर साढ़े ते भी मेहर करेगा। खैर, गुरु नानक देव जी एक पंक्ति है, सतयुग तैं माणियो, तैं सामने खड़े दूजे बंदे नूं आखे, हे नानका तू सतयुग तैं माणियो, चलियो बल बावन पायो, त्रेते तैं माणियो। दूजी बार आ गया ना राम रघुवंश, तीजी बार द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरदास कियो, उग्र सैन को राज पै भगत ना जियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद, सब तू ही तू वरतना। तो जे गुरु बाबा नानक बार बार दुनिया तो है तो सानू आउं च की फर्क पवेगा। इसलिए मैं मुड़ के नहीं जमांगा दा अर्थ ये नहीं करना कि मुड़ के मैनू शरीरक जामा नहीं मिलेगा, मुड़ के मैं उन्हां हालातां विच अपना सिर नहीं चकांगा जिथे मैं मनमुखताई का जीवन जींदा सी। हुण तां तेरी रजा है, जिधर मर्जी तू लई फिर लई जा। गुरबाणी एक देशी एक काली नहीं, ये सदीव काली है। इसलिए अर्थ इस तरह भी आप करना है, रब जी ने की मेहर। आहा हा, हुण गुरु नानक जी एक थां ते कहंदे भी जदों गुरु मेहर करदा पता की हुंदा, कर हुक्म मस्तक हाथ धर, मार कढ़ियां बुरियाइयां विचों मार कढ़ियां बुरियाइयां, मार कढ़ियां मार कढ़ियां बुरियाइयां विचों मार कढ़ियां बुरियाइयां, मार कढ़ियां। हुण मेरे विचों बुराइयां ही मार के कर दी, मैं मुड़ के उन्होंने बुराइयां वाले पासे कभी जमागा ही नहीं। यह मैनू जीवन मुक्त कर दिता। जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवै मरिया जीवदे जी ही सब कुछ खेल बरता दी। उन्हें मेरे मत्थे दे बच्चे दे अपने बच्चा जान के मत्थे ते हाथ रखिया ते रख लिया, प्रभ अमृत नाम महारस दीन्यो। प्रभु जी ने आप ही मैनू अपनी याद दे दी, नाम दे दिता, मैं हुण ओदा हो गया। हुण मेरे नाम पिछे ओदा नाम लगदा, सन ऑफ मैं ओदा हो गया हाँ। अरे वाह, दास की लाज रखै मेहरबान,
गुर नानक बोले दरगाह परवान। एक गल हुण इत्थे कह दी, मैं सच गल कहंदा हाँ। गुर नानक बोले, बोलदा है। सिमर बेनती है, जिथे दुलाइयां लगियां हो ना, दुलावां लगियां हो, उन्होंने एक लाम ला के ना बोलिया करो, इनका पास टेंस हो जाता उस वेले हो। जे कही ना गुरु नानक बोले तो भाव उदों बोलिया सी, हुण नहीं जे बोलदा। इत्थे है बोला, बोलदा है, हुण भी बोलदा है। ही स्पीक्स नाउ। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोल भाव गुरु नानक दोनों के औंकड़ लगे हुआ। जो बोलदा है वो ही बोलदा जिहड़ा दरगाह विच प्रवान हुंदा। हुण इत्थे ध्यान होर रखना है, गुरु सच्चा ते सुच्चा होवे, वो सानू जिउंदे जी ही दरगाह के सामने खड़ियां कर दिंदा ते फिर नाल पिछे थापड़ा दिंदा, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, कारज पूरा, जीवन का कारज पूरा हो गया। दुख कष्ट क्लेश मेरे नेड़े रहे कोई नहीं हैं, तो जो हो रहा है मैं इसनूं प्रभु रजा समझदा। एक बार हम फिर ध्यान देखना, निरापुरा गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाही की जिंदगी नाल संबंधित ये शब्द सिर्फ शुकराने का शब्द है, पर है साडी जिंदगी नूं सही करने वास्ते। आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ही दुखों कष्टों क्लेशों तो कढ़न वास्ते, इसलिए आओ अज तो ही कोशिश करिए कि असीं गुरु वाले हो करके जीवना। पहली गल, गुरु वाले हो के गुरु अनुसारी जीवन जीव के जीना। दूजी गल, तीसरी गल, जे जीवन चंगा जी हो जाए तो वह अहंकार नहीं करना, कहना सिर्फ यही है कि उस मालिक ने मेरे ते कृपा की है, मैं बुराइयां तो बचया होया जीवन जी सकिया, इसकी अपनी कृपा सी। ऐसे दयालु गुरु नू नमस्कारा करो। तो जे को पूछे तुसी क्यों नहीं गुरु नू छड्ड के होर कोई आसरे लेंदे, ये अज के वचन की मेरी आखिरी गल है, ध्यान रखना। तुसी क्यों नहीं गुरु के हुक्म नू, गुरु के ख्याल नू, गुरु नू छड्ड के होर कोई आसरे ले। लोग भी तो इदा करी जाते हैं, लोग भी तो इत्थे पूजा करते हैं, तुसी भी चलो जी साडियां दे कोल चलो, साडियां दे कोल करो। उत्थे कह देना मैनू तो एको एक आसरा मेरे गुरु ने दसा दिता, वो की है? नाम मेरा आधारो साचा, नाम मेरा आधारो, नाम नाम मेरा आधारो साचा, नाम मेरा आधारो। बस इस आसे ते रहना तो फिर असी दास बन जावांगे। गुरु जी कहते दास की लाज रखै मेहरबान। वो मेहरबान परमात्मा अपने सेवकों की आप ही इज्जत रखता है, आप ही लाज पात रखता है, उन्होंने कोई दुख आउण ही नहीं देता। जे आ जाए तो वही याद में जुड़िया ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म शरणाई नाल सब कुछ पूरा हो जाता है। रब्बी रहमतां नाल सब की झोल भरी रहे। इन्हें एक बचन प्रवान करने हुई भुलों गलतियां बेअदबियां वास्ते खिमा जाचना। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का, भाई साहबान जी का, तो बाकी सारे प्यारियां का। आओ रल मिल करके फतेह का आदान प्रदान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।